ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਡਿਸਕਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ f(x) at x is equal to 2। ਕੰਸੈਪਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ x tends to 2 f(x) ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ f2 ਦੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ f2 ਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ f of 2 ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ 0 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਨਿਕਾਲੋ ਲਿਮਿਟ। ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਮ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x approaches to 2 ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ x approaches to 2 ਮਤਲਬ x 2 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x approaches to 2 ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਡਿਆ, 2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਤਲਬ 2 ਵੱਲ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਪਰ 2 ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ x is not equal to 2। x approaches to 2 ਮਤਲਬ x is not equal to 2। ਤੇ ਨਿਕਾਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ approaches to 2। approaches to 2 ਮਤਲਬ x is not equal to 2। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ x minus 2 under x square minus 4। ਕਰੋ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 2 2 ਉੱਪਰ ਵੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 4 4 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 0/0 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਮਤਲਬ 2 + 2 ਮਾਈਨਸ, ਪਰ ਆਪਾਂ 2 + 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ 0/0 ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ a² - b²। 4 ਮਤਲਬ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 4 ਮਤਲਬ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, a² - b², a - b, a + b, a - b, a+। ਮੈਂ ਦੋ ਸਟੈਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ है ना। फिर अगले स्टेप से अंडूड वखरे वखरे होंगे, x - 2 अंडूड ते x + 2 अंडूड। ए अंडूड ऊपर चला गया, अंडूड का अंडूड करके ऊपर आ गया। मैं उधरों रब करने पाया निकालना है। ए कितना बन गया, करो सॉल्व। ए x - 2 ए अंडूड ऊपर आ गया, नीचे की आ गया x + 2 अंडर दी रूट। इधर नाल की आ गई लिमिट x approaches to 2। लेफ्ट हैंड साइड से की है लिमिट x tends to 2 f(x)। अच्छा हूँ इतने लिमिट पुट करो। ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0/0। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 0/0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। 0/0 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 0/0 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 2, ਇਹ 2 - 2 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0, ਤੇ 2 + 2 ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ 4, 0/something 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਲਸੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰਫਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ f of 2, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0। ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ। स्टेटमेंट रब कर देना, ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट की गिवन ही f of 2 कितना है 0। ਇਹਦਾ मतलब from 1 and 2 की हो गया, यही प्रूव करना ही ना। लिमिट ते f of 2 दोनों की आ गए इक्वल, कहते इक्वल आ गए 0 के। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया फिर फंक्शन इज
कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। देखना ये नाल दे 2-4 सम हो रहे हैं। मैं इस तो बाद आन लगा हूँ 12th सम ते आप फटाफट सम सॉल्व करी जानी है। सम नंबर 12 मैं हूँ पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, थोड़ा जिहा लिख देना स्टेटमेंट। फिर उन्हें यही क्या कॉन्टीन्यूटी चेक करो, कॉन्टीन्यूटी चेक करो किहड़े पॉइंट ते 3 ते ऊपर मोड है, फंक्शन दियां 2 वैल्यू देतियां, एक 3 ते एक नॉट इक्वल टू 3 ते। स्टेटमेंट पूरी की है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू, सीधा ले देना इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, कहना दसो कंटिन्यूअस है कि नहीं गा। ठीक है जी। अच्छा कंटिन्यूअस कदों होएगा, फिर वही की जदों किहदे इक्वल आ जाए एफ ऑफ 3 दे, लिमिट किहदे इक्वल आ जाए ए की जगह 3 आ गए ना जेडे पॉइंट ते कंटिन्यूअस क्या हुआ। अगर यह दोनों इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे फंक्शन की है कंटिन्यूअस। एफ ऑफ 3 कितना है, फंक्शन की वैल्यू 3 कितनी है, तुम कहना हर बार गिवन ही होगा। एफ ऑफ ए तुम हर बार गिवन होएगा, ए मतलब जनरल गल करेंगे आप लिमिट निकालनी है। हुण इहदे विच ध्यान रखना, इहदे विच फंक्शन से की आ गया मोड, जिद्दां आपां +1 से तुहानूं कहा सी जदों मोड आ जाए या क्लोज इंटीजर फंक्शन आ जाए या फंक्शन ब्रेक होए होण मतलब 2 या 2 तो ज़्यादा फंक्शन दिते होण ते आपां फिर लिमिट सीधी नहीं कर सकते। इसदा मतलब हुण आपां लिमिट ऐदा सीधी नहीं निकाल सकते। अगर लिमिट नहीं सीधी निकाल सकते इसदा मतलब फिर कंटीन्यूअस भी आपां सीधा नहीं प्रूव कर सकते। इसदा मतलब भी हुण आपां कंटीन्यूटी ए दोनों इक्वल करके नहीं करनी, हुण आपां दूजा मैथड किहड़ा ही भला 3 प्लस ते 3 माइनस ते एफ ऑफ 3। अगर इन जनरल गल करिए तो उदा कर लो ए प्लस ए माइनस ते एफ ऑफ ए। याद रखना जो मोड आ जाए, वैसे तो तुम नेबरहुड वाला सम कंसैप्ट हर एक सम च लगाओगे तो ईजी होना है। वैसे तो यह कंसैप्ट हर एक च लग जाता नेबरहुड वाला, यह सारे तो नहीं लगता। मैं जनरल लिख देना कंटीन्यूअस वास्ते यह कंसैप्ट सारे तो नहीं लगता पहला, ठीक है शॉर्टकट है, यह सारे तो लग जाता है। पर यह आप इस करके अवॉइड करने क्योंकि पेपर से 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, वो अगर तुम ए प्लस ए माइनस करोगे तो बहुत लेंथी चल जाना। शॉर्टकट बनाने वास्ते लेंथ को घटाने वास्ते आप इनू सीधा डायरैक्ट भी लगा सकते हो। चीज़ वही है, लिमिट कढ़नी है, लिमिट कढ़न के 2 तरीके होंगे, या सीधा पुट कर लो चाहे नेबरहुड वाला ए प्लस ते ए माइनस, अगे सीधे निकल जाते तो सीधे कर ले। हुण की करना ए प्लस ते ए माइनस मतलब नेबरहुड वाला, या मैं तुहानूं दस दिता जिथे मोड आएगा क्लोज ब्रैकेट आएगी या फंक्शन ब्रेक होया आएगा किड्डां तुहानूं दसांगे की करना। अगर यह 3 चीज़ां आए तो इत्थे साडे कोल नेबरहुड वाला कंसैप्ट लगा के ही लिमिट निकलनी है। मतलब ये जो कंटीन्यूअस प्रूव करना फिर तीनों करनी पैनी है, ए प्लस ए माइनस ते एफ ऑफ ए। ये फिर तुम यह सीधा नहीं लगा सकते। ये जो मोड आ जाए क्लोज इंटीजर फंक्शन आ जाए, अगला सम यही है 1 2 3 यही 3 सम कराने अभी तुहाडे कोल टॉपिक 3 क्लीयर होंगे। कल सीधे किते ही, अज भी सीधा डायरैक्ट लिमिट वाले किते ही, हुण ए नेबरहुड वाला कंसैप्ट किते किते लगा। करो इनू सॉल्व। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ है। अगर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ 3 + fx 3 - fx ਤੇ f of 3 ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣ ਇਕੁਅਲ। अगर ये तीनों इक्वल आएंगे क्योंकि मोड आ गए ना तो आप कह देंगे फंक्शन की हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस। अच्छा फंक्शन की वैल्यू 3 तो कितनी है, एल सारे को निकली गई 0, यदा मतलब 3 प्लस ते 3 माइनस, ज्यादा बोल दो a प्लस ते a माइनस निकाल लेंगे। तो मैं तुम्हें उदों भी दसिया ही कल कि a प्लस a माइनस किदा करनी आप एच च लैके देखना, ध्यान रखें। यदा मतलब पैसे चाहे 3 प्लस निकालो चाहे 3 माइनस, जो मर्जी पहला निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों निकालने एक एक करके 3 प्लस
अच्छा 3 प्लस कितना करिए फंक्शन केड़ा लईए 3 प्लस मतलब 3 तो जस्ट वड्डा 3 प्लस मतलब 3 तो जस्ट वड्डा 3.01 या 3.001 अगर 3 प्लस मतलब 3 तो जस्ट वड्डा ਇਹਦਾ मतलब नॉट इक्वल टू 3 ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन क्या लेना है तो फंक्शन क्या लेना है नॉट इक्वल टू क्योंकि 3 प्लस मतलब 3 तो वड्डा मतलब नॉट इक्वल टू 3 लवो फंक्शन एनू सॉल्व करो थोड़ा अद्धा करदा ना सॉल्व एनू करो सॉल्व किद्दां करना है एनू सॉल्व एच से लैके कल वाली वीडियो देखियो देखो जिन्होंने +1 से पढ़े उन्होंने बहुत ईजी लगनी है जिन्होंने नहीं पढ़े +1 से समझ लो पूरा डिटेल से समझाने फिर ए पता लग गया a प्लस a माइनस ए वाला कदों लगाना कंसैप्ट जो मोड आ जाए क्लोज इंटीजर फंक्शन तो एक एक करके समझाना अही करती नहीं सम करनी है 3 कंसैप्ट जो आने उदों लगना 3 a प्लस a माइनस वाला अच्छा a प्लस a माइनस इतने a की जगह 3 आ गया 3 से करना ना कितना सॉल्व करना है एच से लैके इतने लिख लो नहीं तो a प्लस ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ a plus a minus ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ h ਤੇ ਲੈ ਕੇ h ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ a plus h ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 plus h ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ h ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਅਗਰ x ਗਿਆ h ਚ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ x ਗਿਆ h ਚ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ h ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ +1 किया ही आप अगर लिमिट जो भी तुम एच च लैके जाओगे वो हमेशा की बन जानी है 0 लिमिट एच च जाके हमेशा की बन जानी है 0 फिर तो लास्ट वाली बोलेगा ध्यान सुनना जो भी तुम a प्लस a माइनस का कंसैप्ट लगाना पहला तो देखो कदों लगाना है ज़्यादातर 3-4 चीज़ा होंगे तो लगता है पहला मोड दूजा जो इदा ब्रैकेट दी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो तीजा जो फंक्शन स्प्लिट होएगा तीनों एक एक करके समझाना यह 3 केसेस से साढ़े को लिमिट सीधी नहीं अप्लाई होंगी की लगता है a प्लस से a माइनस दूजी गल अच्छा यह पता लग गया हूँ इतने कंसैप्ट लगना क्योंकि मोड आ गया पर a प्लस a माइनस कढ़ना किदा है इनू एच च लैके एच च किदा लैके जाना है मैं जनरल लिख देना यह a प्लस की वैल्यू किदा करनी है तुम फंक्शन के x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ a plus h अगर फंक्शन गया h से तो लिमिट भी जाएगी जो लिमिट h से जाएगी गोज टू तो हर बारी की बन जानी है 0 उदा ही जो a माइनस करना है तो a माइनस कितना कटोगे इतने x ਨੂੰ ਕੀ पुट कर देना फिर a माइनस h तो फिर अगे सॉल्व करना किदा यह देखो इतने a की जगह कितना आ गया 3 इस करके मैं 3 प्लस h ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करो नहीं की करना है h की लिमिट कितनी होगी 0 h से लग जाना हूँ x की जगह की पुट कर देना है 3 प्लस h माइनस 3 उदा ही x की जगह ते 3 प्लस h x की जगह ते 3 प्लस h माइनस 3 यह सारा पुट करके लिमिट h टेंड्स टू 0 लैके इनू सॉल्व करो बोर्ड छोटा है इस करके मैं रब करने इनू करो सॉल्व जिले तुम इनू सॉल्व करोगे अच्छा हम लैफ्ट हैंड साइड से की गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस की वैल्यू करो सॉल्व कि आ गया 3 3 कटिया गया ऊपर की आ गया h मोड नीचे कि आ गया 3 प्लस h 3 कटिया गया तो थले की आ गया h की लिया आपने पॉजिटिव h का मोड करोगे पॉजिटिव का मोड में शब्द होएगा पॉजिटिव एच है एच पहला लिख लिया एच नाल एच कटिया गया है ना एच नाल एच कटिया गया ये बचा लिमिट एच टेंस टू 0 1/3 प्लस एच सारा कुछ सॉल्व करने तो बाद लास्ट तुम हूँ अगे एक्स की वैल्यू पुट करते हूँ कि करनी है एच की एच की पुट कर देना है 0 जिले एच 0 पुट करोगे तो यह आ गया 1/3 कि वैल्यू कढ़नी है कि कढ़ी है 3 प्लस है ना 3 प्लस 3 ਆਪਾਂ x = 3 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ
मैं तुहानूं एक होर चीज़ दसना कि आपां की कहीं 3 ते कॉन्टीन्यूस कदों होएगा जदों 3 प्लस एफ एक्स 3 माइनस एफ एक्स ते एफ ऑफ 3 ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। ये तीनों इक्वल आएंगे तो की होएगा कॉन्टीन्यूस होएगा। अगर तीनों इक्वल नहीं आते तो की होएगा डिसकॉन्टीन्यूस। हुण इहदे विच जरूरी नहीं है तुसीं तीनों ही कढने हैं, आपां एक चलाकी मार लेनी है। की करना देखना, सानू पता है फंक्शन की वैल्यू 3 ते कितनी है 0, फंक्शन की वैल्यू 3 ते कितनी है 0 ते 3 प्लस ते कितनी आ गई 1/3 है ना। 3 प्लस ते कितनी आ गई 1/3। यही दो इक्वल नहीं आए जो तुम 3 माइनस करना कर लो, वैसे कढ़ने की लोड़ ही नहीं है। यही दो इक्वल नहीं आए, तीनों इक्वल होने चाहिए ना। जे ए 0 है यह भी 0 होना चाहिए, यह भी 0 होना चाहिए, या जे ए 1/3 आने यह भी 1/3 यह भी 1/3 होना चाहिए। जे ये दो ही इक्वल नहीं आए तो फिर तीजा कढ़ने की लोड़ नहीं। मैं यही पता लग गया दो ही इक्वल नहीं आए तो तीजा आना ही नहीं। वो दो ही इक्वल नहीं आए 1/3 है कि नहीं 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं गए तो वो डिसकॉन्टीन्यूस के इतने शो हो गया। फिर तो सुनो आपां की प्रूव करना ही फंक्शन की है कॉन्टीन्यूस हैगा कि नहीं गा 3 के उत्ते। सानू पता कॉन्टीन्यूस कितना चेक करते ही, या सीधी लिमिट या a प्लस a माइनस इतना आ गया। यह तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन की होएगा कॉन्टीन्यूस। तुसीं रफ च चेक कर लेना जिदा मैं चेक करना। फंक्शन की वैल्यू 3 ते कितनी दी है 0। हुण आपां कहते निकालनी है 3 प्लस ते 3 माइनस ते। यह जरूरी नहीं है दोनों करनी है। हुण इत्थे 3 प्लस कितना आ गया 1/3। मैनू यही पता लग गया यह दोनों ही इक्वल नहीं गए, यदा मतलब फंक्शन की हो गया फिर डिसकॉन्टीन्यूस। तीजा कढ़न की लोड़ ही नहीं है, 3 माइनस कढ़न की लोड़ ही नहीं है। अगर तुम कढ़ भी दोगे तो भी डिसकॉन्टीन्यूस ही रहना हो, चाहे जी मर्जी वैल्यू आ जाए। वो क्लीयर हो गया कि नहीं है। हाँ अगर यदी वैल्यू साढ़े को 0 बन जाती, अगर यदी वैल्यू 0 बन जाती फिर मैं 3 माइनस भी करना ही। अच्छा देखो तीनों इक्वल आते कि नहीं आते। अगर यह भी 0 बन जाता ना, जो इत्थे होंदी वही है आएंदी, जो इत्थे होंदी वही है आएंदी, फिर मैं तीजी वैल्यू कढ़नी है। तो जे इत्थे ही पता लग गया मैनू यदी वैल्यू कितनी आती है 1/3, यह इत्थे ही इक्वल आया तो फिर मैनू तीजी वैल्यू कढ़न की लोड़ नहीं। मैनू इत्थे ही पता लग गया भी की है डिसकॉन्टीन्यूअस। तो क्लीयर है। तीजा तां कढ़दे अगर पहले दोनों सेम होंगे। ਇਹਦਾ मतलब विच इज लिख लो विच इज नॉट इक्वल टू f3। दोनों इक्वल नहीं गए, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन की हो गया नॉट कॉन्टीन्यूस या डिसकॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू। ध्यान ना देखना दो तीन चीज़ां हैं। पहला इतने साढ़े को क्या कंसैप्ट आ गया a प्लस a माइनस कदों लगाना है। फिर इतने यह भी देखो भी है ना फटाफट करते ही जाओ, जिन्ना ने कोई नंबर नहीं कटना है ना। सोचो भी इतने 3 माइनस कट देंगे तो नंबर ना जे कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं करना ने, जे नहीं कटोगे तो भी कोई नंबर नहीं कटना। है दोनों इक्वल नहीं गए, अच्छे सम खत्म हो जाना। 3 माइनस कटन की जरूरत ही नहीं है। तेरा मतलब फंक्शन की हो गया कॉन्टीन्यूस। यह भी जरूरी नहीं कि यार एक तो कॉन्टीन्यूस 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 ही आता रहेगा। सानू चेक करना पेगा कि कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है। क्लीयर है। देखो कि आप 4-5 सम करने अज वो वाले करने जिहदे विच a प्लस a कल डायरैक्ट किते ही 13 देखो is f(x) continuous at x is equal to 1। कहता दसो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 1 ते। देखो चेक करो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 1 ते। अच्छा फिर इधर लिख देना कॉन्टीन्यूस ता ही आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप +1 च पढ़िया नहीं, मैं बार बार बोल रहा जिन्होंने +1 च नहीं पढ़िया हूँ याद रखियो वो मोड सी है कि आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की होंगे सुन लो एक मिनट मैं बता देना। मान लो ये 2.9 है तो जिले तुम ब्रैकेट सॉल्व करके लिखोगे तो ये की आना 2, सिर्फ इंटीजर लेंदा डेसिमल वाला छड़ जाता है ना। अगर 1.1 होंदा तो इनू सॉल्व करके कितना आना ही 1 पिछला इंटीजर। अगर अच्छा माइनस होंदा तो यार ना अगर -1.1 होंदा तो फिर इन्हें कितना लेना ही -2। मैं करावांगा क्लीयर।
तुहानूं फंक्शन रिलेशन फंक्शन जाना है, ठीक है। फिलहाल तुसीं देख लेना आपां +1 च कीते ही है, +1 च कीते दे सारे है हुंदा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब अगर साडे कोल एक ब्रैकेट दे विच कोई डेसीमल वाला आ जांदा है ते आपां इंटीजर लैंदे आ, डेसीमल वाला छड्ड दिंदे। हुण फिर कहता फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, 1 ते चैक करो। फिर यह फंक्शन 1 के उत्ते कॉन्टीन्यूस तां ही होएगा अगर हुण इत्थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। तो मैं तुहानूं पहले ही कहा 3 चीज़ां आउणगियां, किहड़े मोड जिद्दां पिछे कीता मोड ऐदा, या दूजा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ते तीजा फंक्शन स्प्लिट होया होएगा। इन्हां तिन्नां केसिस दे विच साडे कोल किहड़ा कंसैप्ट लगना है, सीधी लिमिट नहीं लगनी, की लगना है a+ a- ते f। अगर तीनों इक्वल आ जान तो फंक्शन की होएगा कॉन्टीन्यूअस। इत्थे a की जगह कितना आ गया 1, a मतलब वो पॉइंट जिते उन्हें क्या चेक करोगे, है ना। a की जगह कितना आना इत्थे फिर 1, यानी कि 1 + 1 - f1। अगर तीनों इक्वल आ जान, अच्छा हूँ तो पता लग गया ना सीधी डायरैक्ट क्यों नहीं लाया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। हुण ये 1 + 1 - f1 की वैल्यू कड्डो। अच्छा f1 तो क्लीयर हो गया सीधा ही, फंक्शन की वैल्यू 1 तो कितनी है -1, फंक्शन की वैल्यू 1 तो कितनी है -1। आप दोनों पढ़ने हैं। फिर एक होर चलाकी जी हमने पिछले समझ दसिया, यह दोनों कढ़ने हैं अगर पहला 1 प्लस कड्डो, अगर 1 + -1 आ जाता है सेम आ जाते हैं, फिर तीसरा कड्डो। तो जो यही सेम नहीं आते तो फिर एड करन दी सॉल्व करन दी लोड़ ही नहीं है, सानूं उत्थे पता लग जाना डिसकॉन्टीन्यूअस है जिद्दां पहला कीता। तुसीं 1+ भी पहला कर सकते हो, 1 - भी पहला कर सकते हो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1+ कड्ढन लगा फिर वैल्यू 1+ वास्ते किहड़ा फंक्शन लईए, 1+ मतलब फिर वही चीज़, 1+ मतलब 1 तो जस्ट वड्डा, 1 तो जस्ट वड्डा मतलब नॉट इक्वल टू 1, आ गया फंक्शन x मोड सॉरी ब्रैकेट करो सॉल्व वैल्यू। फिर मैं तुहानूं भी क्या 1+ मतलब a + a- आपां किद्दां सॉल्व करने हैं, x च लैके जाओ इनू, x च किद्दां लैके जाओगे, यह फंक्शन दे विच x नूं की पुट कर देना है a + h, a मतलब 1h 1 + h। अगर फंक्शन x गया h च तो लिमिट भी की जाएगी h च, मतलब है सारा h च लैके जाना नेबरहुड। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस गोज टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सारिया वैल्यू एच पुट करो, इधर से तुहाडे कोल यही आ गया 1 + f(x), इतने एच से लैके जाओ लिमिट भी चल गई एच च, है कितना आ गया 1 + h -1, ब्रैकेट है, ब्रैकेट केड़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जिन्होंने +1 च पढ़े उन्होंने +1 च सम किए थे, +1 च भी है सम, +2 च आप सिर्फ यही चेक करना ला के तो +1 च भी करी है, तो +2 च तो सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, एक सिंगल जहा स्टैप करना +2 च, बाकी सारे सम है +1 वाले ही भी है। f1 और 1 कटिया गया है ना, मैं रब कर लगा ध्यान देखना f1 की वैल्यू कितनी है -1, मैं लिख दूंगा दोबारा। हूँ ये अगे सॉल्व करो नू, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 1 + h, 1 + h मतलब 1 + h मतलब 1 पे कुछ ना कुछ प्लस होएगा, 1 + h मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो जिले आप 1 + h मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो जिले ब्रैकेट लाँगे तो ब्रैकेट का मतलब की होंदा है 1 + 1 कितने सम दिते हैं आप, इंटीजर आ गया 1, h नूं 0 नहीं पुट किया, h नूं 0 नहीं पुट किया, सीधा ही 1 + h मतलब 1 -1/h, क्या 1 - 1 कितना हो गया, देखो ये h नहीं 0, लिमिट नहीं 0 पुट की, पहले ही बन गया 0/h, कितना बन गया 0, और 0/h कितना बन गया 0। तो हूँ कि वैल्यू हुई 1 प्लस है ना, आनी कितनी चाहिए 1 तो कितनी है -1, आ कितनी गई 0, तो जे दोनों इक्वल है नहीं तो यदा मतलब फिर 1 माइनस कड्ढन की लोड़ ही नहीं है। अच्छा लिख लिया नंबर 1 आ गया, यदा मतलब कितना आ गया 1 प्लस से वैल्यू कितनी आ गई 0,
नंबर 1 एज एफ ऑफ 1 कितना ही -1 तो जे दोनों ही इक्वल नहीं गए कोई दोनों इक्वल नहीं गए तो तीजा कढ़न की लोड़ ही नहीं तीजा तो कढ़ते ना जी दोनों इक्वल आते नॉट इक्वल टू F1 इक्वल नहीं गए मतलब साफ लिख देना इक्वल लिख देना from 1 and 2 limit x tends to 1 plus fx is not equal to f1 वो दोनों इक्वल नहीं है तो तीजा की करना कट के हाँ तीजा 1 माइनस ता करता जे भी 0 होता या दोनों -1 होंगी सेम होंगी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ फंक्शन is not continuous at x is equal to 1 मेन चीज़ तो यह याद रखनी है भी आप a प्लस a माइनस वाला कंसैप्ट इतने लाना हूँ तुम अपनी बुक चेक करो अगे मोड वाले सम है करो ट्राई आप ही मैं मोड वाले छड्डन लगा तुहाडे वास्ते तो जे तुसीं कहंदे हो तो एक होर कराना मोड वाला 15 तो करो ट्राई जे होएगी प्रॉब्लम फिर पूछो वीडियो लेंथ चल जानी है मैं खत्म करना टॉपिक एक 21 उस तो बाद फिर पीछे आना एक सम होर कराना 21 22 दो सम करांगे 21 पे 23 पूरी स्टेटमेंट लिखी फिर वही लिखता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x है ना। अच्छा हम देखो कॉन्टिन्यूस ता ही आएगा अगर हम इतने कड़ा कंसेप्ट लावा a प्लस a माइनस के लिमिट वाला देखो ना तो इस मोड है ना ना ही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ਇਹਦਾ मतलब यह सम सीधा ही सॉल्व होए ने सीधा मतलब ये फिर वही जिदा आप कल की अज पहला सम किया x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए नेबरहुड वाला कंसैप्ट नहीं लगाना सीधी लिमिट डायरैक्ट a कितना आ गया 0 से क्या चेक कर लूँ 0 से f 0 फिर वही गल फंक्शन की वैल्यू 0 से कितनी दी है 8 आप लिमिट कढ़नी तो लिमिट कितना कढ़नी है जिदा +1 से कढ़ी फिर लवो इतने वैल्यू हूँ जिन्होंने +1 मेहनत की है पढ़ेगा उन्होंने बहुत ईजी लगेगा एफ एक्स तुम भाई +1 की बुक देख लो तुम समझ भी सेम मिल जाना करो सॉल्व ये तो 0 + 0 माइनस नहीं करना अच्छा जो तुम 0 + 0 माइनस कर भी लोगे तो गलत नहीं होना पर बड़ा लंबा पैना है ना ऐसे तक cos 0 1 1 - 1 की बन गया 0/0 x को 0 पुट करोगे cos 0 14 ना कर दोगे तो 4 × 0 0 cos 0 1 1 - 1 0 0/0 ਇਹਦਾ मतलब है तो सॉल्व होना ही नहीं 0/0 की है कुछ भी हो सकता है पता नहीं फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है 0 भी हो सकती है तो इनफाइनाइट भी हो सकती है इनू कैलकुलेशन करो मतलब 0/0 फॉर्म खत्म करो कितना जिदा +1 से की लगाओ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप फार्मूला पढ़े एक 1 + cos 2x कितना होंदा ही 2 cos square x 1 - cos 2x के होंदा ही 2 sin square x प्लस आ जाए थे cos माइनस आ जाए थे sin इतने कितना 4 माइनस वाला ना इतने कितना 4 जिन्ना एंगल इधर है इधर कितना होंदा हाफ 2x है तो कितना होंदा ही x अगर 4 है तो 4 का हाफ 2x ਇਹਦਾ मतलब 0/0 खत्म करने हैं कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और अगर सॉल्व करके 8 आ जाता है तो कॉन्टिन्यूस है अगर 8 नहीं आता तो कॉन्टिन्यूस नहीं है करो कितना आ गया 2 sin square 2x थले कितना आ गया x²। हूँ लिमिट पुट करो अच्छा फिर लिमिट पुट करोगे या फिर की बन गया 0/0 क्योंकि sin 0 0 0 पॉइंट समथिंग फिर 0/0 लिया तो आप +1 च पढ़िया ही जो भी ट्रिग्नोमेट्री 0/0 बन जाए
याद करियो जिन्हें पढ़े मेरे को, अगर ट्रिग्नोमेट्री च 0/0 बन जाए तो आप किस कन्वर्ट करते ही साइन च या फिर टैन च, किस कन्वर्ट करते ही साइन च या फिर टैन च। क्यों? क्योंकि एक साइन का फार्मूला होंदा ही है, कितना होंदा ही 1, आया याद कि नहीं कुछ? साइन जिन्ना एंगल च उन्ना ही थल्ले, साइन AX/AX कितना होंदा है 1, कितना है ना +1 च लिमिट च। तो ये करना है, इनू भी उदा बनाओ जिन्ना एंगल च उन्ना ही थल्ले। स्केयर मैं बाहर काटना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होल स्केयर पाना कोई फर्क तो नहीं पिया, है तो बन गया स्केयर तो स्केयर। मैनू की चाहिए जिन्ना एंगल च उन्ना ही थल्ले होएगा, तो यदी वैल्यू कितनी होंदी है 1, है आप +1 च पढ़िया लिमिट च। ये एंगल च कितना है 2x, पर थल्ले कितना है x, इसका मतलब 2 होना चाहिए। मैं की किया, चलो अगले स्टेप से कर देना, अपने वालों 2 ना मल्टीप्लाई करता तो 2 नाल डिवाइड, 2 ना मल्टीप्लाई किया थले डिवाइड किया ना 2 नाल, 2 ना नहीं किया, 2 का स्केयर है ना, 2 का स्केयर है 4, 4 नाल 2 के स्केयर नाल डिवाइड करता तो 2 के स्केयर नाल मल्टीप्लाई करता, कोई फर्क तो नहीं पिया। कट के फिर अही रहा वो कट के इतने 2 ना नहीं क्यों, 2 का स्केयर है क्योंकि स्केयर ही है बाहर, अपने वालों 2 ना डिवाइड करता तो 2 के स्केयर नाल डिवाइड करता तो 2 के स्केयर नाल मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि यह जी 0/0 फॉर्म होगी है, यह सारा की बन जाए 1, यह सारी जगह की आ जाए, साइन वाली जगह सारी जगह की आ जाए, तो सारी जगह की आ जाए 1। करो लिमिट पुट, फार्मूला लगाया देख लेना, सारे लागू करना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ लिमिट पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया इधर 8 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू कितना आ गया 1। किहदी वैल्यू कड्डी है x टेंड्स टू 0 fx, तो यह कितना आ गया साढ़े को 8, नंबर 1 लिमिट आ गई। दूजा जो रफ च लिखा स्टार्टिंग के आलसो फंक्शन की वैल्यू 0 ते ठीक है ना, लिमिट कड्डो वो भी कितनी है 8 फ्रॉम 1 एंड 2, इसका मतलब f की हो गया लिमिट की होगी f0 के इक्वल होगी, इसका मतलब fx की हो गया कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन की हो गया कॉन्टीन्यूअस। ये आप नेबरहुड नहीं लगाई, की लगाता सीधा ही सम। एक और सम देखो 23, बस है लास्ट सम है, बाकी प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लाँगा पिछों की है ना, कोई हो जो सम होंगे फिर करा ए एक्सरसाइज है, नहीं तो फिर बी एक्सरसाइज है ना, वीडियो भी काफ़ी लेंथी बन जाए। 23 स्टेटमेंट का वही आनी है, उन्हें कहना दसो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है जी। बस लास्ट सम है, कहना दसो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं का, तो कॉन्टीन्यूटी के 2 ही फार्मूले होंगे, या सीधी लिमिट तो या फिर नेबरहुड वाला। हुण ये देखो की लगाइए, इनू कहते फंक्शन स्प्लिट होएगा किहड़े पॉइंट, अच्छा 2 ते क्या कॉन्टीन्यूअस तो 2 ते स्प्लिट होएगा, जिदा आप +1 किया ही देखो फंक्शन, यदा मतलब कि होंदा फंक्शन की वैल्यू 2 ते कितनी है x = 2, फंक्शन की वैल्यू 2 ते कितनी है 2, जिहदे फंक्शन ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 तो वड्डा है, तो फिर फंक्शन कितना लेना है x², फंक्शन 2 तो छोटा है, 2 तो छोटा है तो फिर फंक्शन की लेना है 2x, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन 2 ते स्प्लिट हो गया, फंक्शन 2 ते स्प्लिट हो गया मतलब 3 फंक्शन आ गए, 2 ते फंक्शन कितना है 2 x > 2, 2 तो वड्डा है तो फंक्शन कितना आ गया x², 2 तो छोटा है तो फंक्शन कितना आ गया 2x। अगे साढ़े को होंदा ही थ्रू आउट सारे किते इको ही फंक्शन दिता होंदा ही,
ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ, +1 ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ लिमिट का कंसैप्ट केड़ा लगाना है, नेबरहुड वाला। लिमिट का कंसैप्ट केड़ा लगाना है, नेबरहुड वाला। मतलब ये भी तुसीं की चेक करना है a प्लस एफ एक्स, a माइनस एफ एक्स ते एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो कॉन्टीन्यूअस है, अगर तीनों इक्वल ना आन तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ये हुण a की जगह कितना आ गया 2, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो कॉन्टीन्यूअस है, अगर तीनों इक्वल ना आन तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। फंक्शन की वैल्यू 2 ते कितनी है, 2 ते फंक्शन कितना है, 2 ते फंक्शन कितना है 2, इसका मतलब आ गया 2। वैल्यू कैसी करनी है 2 प्लस 3 ते 2 माइनस, वैल्यू कैसी करनी है 2 प्लस 3 ते 2 माइनस 3। अगर ये भी दोनों 2 आ जाते हैं तेरा मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, अगर नहीं आते तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। पहला कड़ी कड़ी है वैल्यू 2 प्लस 3, एक दो एक और चीज़ नवी आई है 2 प्लस 3, कड्डो वैल्यू 2 प्लस 3। हुण एक और चीज़ आ गई प्रॉब्लम, 2 प्लस ते केड़ा फंक्शन लवां, ए ना लवां, ए ना लवां कि ए ला, 2 प्लस वास्ते केड़ा फंक्शन लवां, ए तो लेना नहीं क्योंकि ए तो इक्वल टू 2 दे सीधा ही पता लग गया। अगे किन्ने सानूं 2 ही दित्ते हुंदे सी, 2 ही दिते होंगे, उत्थे लिखे होंगे नॉट इक्वल टू, उत्थे लिखे होंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू 2 मतलब, नॉट इक्वल टू 2 मतलब अगर 2 तो वड्डा है चाहे 2 तो छोटा है, 2 प्लस का मतलब की होंदा है नॉट इक्वल टू 2, 2 माइनस का भी मतलब की होंदा है 2 तो छोटा मतलब 1.9 मतलब नॉट इक्वल टू 2। दोनों वास्ते फंक्शन इक्को ही होंदा है, पर हुण इहदे विच फंक्शन किन्ने आ गए साडे कोल 3। केड़े केड़े 2 ते फंक्शन कितना है 2 जिदा पहला बनाया ही, 2 प्लस इतने याद रखना 2 प्लस मतलब ग्रेटर दैन 2 कितना है एक्स स्क्वायर, 2 माइन लेस दैन 2, 2 तो छोटा है, 2 तो छोटा ही ना, फिर 1 इधर 3 सारे। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ फंक्शन ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ है एक्स स्क्वायर। ਇਹ भी ध्यान रखियो फंक्शन किहड़ा लेना है, ए ना ये 2 प्लस करना है तो फंक्शन है लेनी, 2 प्लस मतलब 2 तो वड्डा, तो 2 तो वड्डे वास्ते किहड़ा फंक्शन है, हाँ लिखा नहीं ग्रेटर दैन 2। किद्दां कड्ढीए वैल्यू एच च लैके, अगे फिर उदां ही है 2 प्लस एच, एच ग्रेटर दैन 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस गोज टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। यही क्या है ना, अगर एक्स गया एच च तो लिमिट भी जाएगी, तो मैं रब करदा फिर सर चलो कर लो कड्डो वैल्यू है जी, लिमिट एक्स एच चल गया, इधर की इधर यही है 2 प्लस एफ एक्स है, एच टेंड्स टू 0 है, कितना आ गया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा कई बार यह भी गलती लगती है, तो है ना कहते कहते 2 प्लस एच स्क्वायर, एक्स की जगह 2 प्लस एच, सॉल्व करो कितना आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 4 प्लस स्क्वायर खोलो, सॉल्व हो गया, एच नू 0 पुट करो कितना आ गया 4, पर एडी वैल्यू कितनी है 2, दोनों इक्वल नहीं गए, ਇਹਦਾ मतलब तीजा कड्ढण की लोड़ ही नहीं, और तीजा कड्ढण की लोड़ ही नहीं, ਇੱਥੇ लिख लो कितना आ गया 4 एंड नंबर 1 आल्सो एफ ऑफ 2 कितना है 2 एंड नंबर 2 आगे लिख लिया तुम जितना मेरे को लिखूंगा ठीक है 2 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू F2 देयरफॉर अगे लाइन लिख लियो फंक्शन इज आगे लिखियो जरूर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखना सम अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करना। थैंक यू बेटा।